Hello everyone. In the previous video of your chapter Light Reflection and Refraction, we studied about image formation by concave mirror and some of its uses. We saw all the 6 cases that when we put object on the infinity, beyond C, at C, between C and F, at F, and between pole and focus. So we saw all the 6 cases and we also studied it very elaborately. Okay, we also saw that if the image is being formed, then what is the size, what is the nature, what is the position of the image today. And also we saw what are some uses of concave mirror, as it is given here also that concave mirrors are commonly used in torches, searchlights and vehicles headlight to get powerful beam of lights. They are often used as shaving mirrors to see a larger image of the face. The dentist use concave mirror to see large image of the teeth of patient. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. Okay, and today we will study image formation by convex mirror. So we saw 6 cases in concave mirror. Okay, we saw 6 cases in concave mirror. I hope you are practicing it, because if you will not practice, you will forget it very easily, and if you will practice, it will be very easy for you. So we saw 6 cases, and today we are going to study about image formation by convex mirror. So you must be expecting that we will again see 6 cases, but no, we will only read here 2 cases. So let's see the 2 cases. Let's see what are the 2 cases. The 2 cases are when the object is at infinity. First we will study when the object is at infinity. Okay, and then between infinity and the pole of the mirror. So the question arises that why only 2 cases here and why 6 cases in case of concave. So what happens is that if we try to draw concave mirror ऐसे होता है, और इसके ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इसमें हम लोग ने डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट रख दिया. हम लोग ने सेंटर पे रखा, फोकस पे रखा, पोल और फोकस के बीच में रखा. लेकिन अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट है इसका फोकस यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, पोल यहाँ होगा. तो हम लोग मिरर के अंदर जाके तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकता. तो हम लोग ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 प्लेसेस पे रख सकते हैं. या फिर हम लोग इन्फिनिटी पे रखें, मीन्स बहुत दूर इन्फिनिटी पे, या फिर इन्फिनिटी और इस पोल के बीच में कहीं रखें. ओके, सो इसी वजह से जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें 6 केसेस होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस होते हैं. कौन कौन से? एट इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर. सो आई होप द concept is clear that why only 2 cases are there in convex mirror, whereas there are 6 cases in case of concave mirror. So let's move on to drawing the ray diagrams. The first case is when the object is at infinity. Object कहाँ पे है? Infinity पे. Object कहाँ पे है? Infinity पे. Let's try to draw. ये हमारा मिरर हो गया. This is a convex mirror. ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे कहीं फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल. तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे. तो ये ऑब्जेक्ट होगा. अब आप लोग, आई होप कि रूल्स आप लोग को याद है. ये ऑब्जेक्ट है. पहली रे हम लोग ले जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है. मीन्स जो रेज इस पर पड़ती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं. ओके, डाइवर्ज जाती है. और ये डाइवर्ज कहाँ से होंगी? हम लोग को ये पता है कि अगर कोई भी रे इसके पैरेलल जा रही है तो ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ डाइवर्ज होगी. ओके, प्रिंसिपल फोकस से होके जाती थी इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर पे ये प्रिंसिपल फोकस के सामने से डाइवर्ज हो जाएगी. अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो ये रेस तो कहीं भी मिलती हुई नहीं दिख रही है. ये रे कहीं भी मिलती हुई नहीं दिख रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है.
अगर हमको इसको मिलाना है तो हम लोग को इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिलवाना पड़ेगा। हम लोग ने 6th केस में देखा था कॉनकेव मिरर के, तो इसको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये रेज हम लोग ने बैकवर्ड प्रोड्यूस की, तो ये समवेयर हियर मिली। ठीक है, ये कहाँ पे मिली? समवेयर हियर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इमेज कहाँ पे बनी? यहाँ पे, एट एफ, बिहाइंड द मिरर एट एफ। इज इट क्लियर? हम लोग ने इसको इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट के पैरेलल रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ी। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, वो डाइवर्ज करेगा रेज को। जब हम लोग को उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो जो इमेज है वो एट एफ मीन्स फोकस पे बनेगी बिहाइंड द मिरर। सेकेंड केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ओके, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर and this is the principal axis, focus, center of curvature, pole. So the object is between infinity and pole, तो हम लोग चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, कहीं भी हम लोग इन्फिनिटी और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसको रख सकते हैं। तो फर्स्ट रे हम लोग कहाँ से ले जाएंगे? जो फर्स्ट रे हम लोग ले जा रहे हैं वो हम लोग इसके पैरेलल ले जाएंगे, और हम लोग को पता है ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी फोकस के सामने से। ठीक है, हम लोग जानते हैं जब कॉनकेव मिरर के केस में हम लोग पैरेलल ले जाते थे तो फोकस से वो पास होती थी, बट ये जो मिरर है ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये फोकस की तरफ से डाइवर्ज हो रही है। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये फोकस पे ही आएगी। और जो सेकेंड रे है वो हम लोग इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालने की कोशिश करते हैं। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, तो हम लोग ने इसको यहाँ डालने की कोशिश की है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट आ रही है तो वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, तो ये इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। और हम लोग इसको अगर एक्सटेंड करें तो ये जो इमेज है ये यहाँ बनेगी। ओके, इमेज जो है, जो ये दोनों रेज मिल रही हैं वो सब यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे। तो जो ये रेज हैं वो जो दो रेज हैं वो यहाँ मीट कर रही हैं, तो जो इमेज है वो बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर बनेगी। ओके, सो आई थिंक दैट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो क्लियर। इट इज़ बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, इट इज़ डिमिनिश्ड, इससे छोटी है, एंड इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो moving on to the next one. After understanding about image formation by convex mirrors, let us study about some of its uses. Okay, so convex mirror are used as rear view. Okay, this is a very important concept which is often asked in your exams, that which mirror is used as a rear view mirror. So what is a rear view mirrors? What is a rear view mirror? Rear view mirror अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो जो बाइक्स पे या फिर कार पे साइड्स मिरर होता है, जो बाइक पे या कार पे साइड में मिरर लगा होता है, वो हमारा रियर व्यू मिरर होता है। ठीक है, रियर व्यू मीन्स पीछे का व्यू देखने के लिए हम लोग जो मिरर यूज़ करते हैं उसको हम लोग रियर व्यू मिरर बोलते हैं। ओके, तो उसमें कौन सा मिरर लगा होता है? उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल, इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। ओके, हम लोग को जब ये मिरर ऐसे पीछे लगा, बाइक्स पे लगा होता है, तो इसमें पीछे की सारी चीज़ें दिखती हैं। मीन्स पीछे कितना ट्रैफिक है, पीछे से कौन सी बाइक आ रही है, पीछे से कौन सा व्हीकल आ रहा है, वो हम लोग जो ड्राइव कर रहे हैं वो देख सकता है, विच मेक्स अस सेफ। ओके, कि अगर पीछे से कोई आ रहा है तो हम लोग थोड़ा सा साइड हो जाएं, या फिर दीज थिंग्स दोज हु नो ड्राइविंग विल गेट इट वेरी इजिली। कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर क्यों नहीं यूज़ करते? तो हम लोग ने देखा है कि कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस में जो इमेज है वो इरेक्ट बनती है, मीन्स सीधी बनती है। बाकी 5 केसेस में जो
इमेज है वो इन्वर्टेड बनती है। तो अगर कॉनकेव मिरर उस पर लगा देते हैं तो क्या होगा, हम लोग को जो बाइक्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो लोग हैं, वो इस मिरर में उल्टे दिखाई देने लगेंगे, विच इज़ ऑफ नो यूज़ ऑफ आर्स। ओके, हम लोग को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो उल्टा दिख रहा है तो हम लोग को उसको लगाने का क्या मतलब। ओके, सो और हम लोग ने कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या देखा कि इस केस में जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बनती है। दोनों केस हमने देखा और दोनों केस में जो इमेज थी वो हमेशा इरेक्ट बनी। ओके, तो इस वजह से जो व्हीकल के रियर व्यू मिरर है उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। और क्या होता है कि इसमें ये आउटवर्ड ऐसे कर्व्ड होता है, तो इसमें जो व्यू है वो थोड़ा सा वाइडर होता है। तो इसमें जो व्यू है वो थोड़ा सा वाइडर होता है, मीन्स इतनी इस स्पेस की और थोड़ा सा अगर हम लोग इधर देखें तो इतने स्पेस में जितनी व्हीकल्स होंगे, जितने भी लोग होंगे, इतने स्पेस में इस एरिया में मीन्स इस एरिया में जितने भी लोग होंगे वो हम लोग को पूरे दिखेंगे। ठीक है, इनका जो मीन्स एक कवरेज एरिया होता है वो कॉनकेव मिरर से ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग रियर व्यू मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। So I hope that it is clear that why convex mirrors are used as rear view mirror and not concave mirrors. This is a very important question which is very often asked to you, that which mirror is used as a rear view mirror. So I hope that concept and everything is clear with this. Let's move on to the next topics. The next topic is sign convention by spherical mirrors. साइन कन्वेंशन क्या होता है? जब आगे जाके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें दिया होता है कि जो इमेज है मीन्स वी वो 15 सेंटीमीटर पे रखी हुई है। तो हम लोग को ये देखना पड़ता है कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसकी वैल्यू नेगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले। अभी जब आप लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लोग को इस चीज़ को पढ़ने की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। ओके, अभी हम लोग जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लोग को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, बिकॉज इट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स सी, पहले मैं आप लोग को समझा देती हूँ, फिर हम लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे। सो लेट्स सी साइन कन्वेंशन। मैं आप लोग को बहुत ईजिली बता रही हूँ, आप लोग ये जानते होंगे। हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, ये प्लेन है, इस पर हम लोगों ने ये 4 लाइंस बनाई है, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये सारी मैथ्स की चीज़ें हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो इधर की वैल्यूज़ होती है, इस साइड की वैल्यूज़, वो क्या होता है, पॉजिटिव होती है। इस साइड की वैल्यूज़ क्या होती है, नेगेटिव होती है। इधर की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑलरेडी फ्रॉम मैथमेटिक्स में आप लोगों ने ग्राफ्स ड्रॉ किए होंगे। तो उसमें आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ग्राफ ड्रॉ किया होगा, तो उसमें ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ये हम लोग वैल्यूज़ लेते हैं कि ये +1 +2 +3 -1 -2 -3 +1, और ये वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स की हम लोग को पता चल गया कि इसमें यहाँ पे जाते वक्त ये पॉजिटिव होंगी, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, यहाँ पे पॉजिटिव होंगी और यहाँ पे नेगेटिव होंगी। मैं आप लोग को ये क्यों बता रही हूँ, लेट्स अज्यूम अ मिरर हियर। हम लोग इसको यहाँ पे एक मिरर समझ लीजिए कि उन्होंने रख दिया। ओके, तो ये जो मिरर होगा, ये मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस समझ लेते हैं हम लोग। तो अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये समझ लीजिए 15 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव में होगी। क्यों नेगेटिव में होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस साइड की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव में होती हैं। और जब इमेज बनी, समझ लीजिए कि इमेज यहाँ कहीं बनी, ये 15 सेंटीमीटर पे ही बनी है, लेट्स अज्यूम इट फॉर अ वाइल। तो ये जो इमेज डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव में होगी, क्योंकि इस तरफ की सारी वैल्यूज़ हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। अब हम लोग अगर हाइट की बात करें
तो अगर हाइट ऊपर की तरफ है मीन्स जो इमेज या फिर ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी तरफ रखा जाता है, हमेशा इरेक्ट होता है, बट तो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में होगा, और जो इमेज होती है वो समटाइम्स इन्वर्टेड बनती है और फिर या फिर इरेक्ट बनती है। तो अगर वो इन्वर्टेड होगी तो नीचे की वैल्यूज़ क्या होती हैं, नीचे की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इन्वर्टेड बनी है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इरेक्ट बनी है तो ऊपर सारी वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो आप लोग ये मैंने आप लोग को बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि साइन कन्वेंशन कभी कभी लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब अभी हम लोग एनसीईआरटी के लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। साइन कन्वेंशन क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट, हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। मैंने आप लोग को बताया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड पे, हम लोगों ने बनाया भी, हम लोगों ने ड्रॉ भी किया तो देखा कि ऑब्जेक्ट हम लोगों ने हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा। दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है तो लाइट भी लेफ्ट साइड से आएगी। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और जो सारी डिस्टेंसेस होती हैं वो हम लोग पोल से मेजर करते हैं। मीन्स ये पोल है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पोल है, तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम लोग इस डिस्टेंस को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे। I think it is also clear. All the distances measured to the right of the origin along x-axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin along negative x-axis are taken as negative. अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ग्राफ के थ्रू कि ये होता है पूरा, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो राइट एक्स एक्सिस पे राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करके लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन आप लोग ने अगर वो चीज़ जो मैंने पहले समझाई वो समझ ली है तो ये भी आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ रही होगी। ओके, सो ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along positive x axis are taken as positive, while those distance measured to the left of the origin along negative x axis are taken as negative. ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये वाली वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो परपेंडिकुलर और प्रिंसिपल एक्सिस ये है, और जो इसके ऊपर की डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होती है, आप लोगों को पहले से पता है। और जो बिलो होती हैं, परपेंडिकुलर एंड बिलो मीन्स हाइट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया गया है, इसीलिए इसको बहुत लोग इसको स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पहले उसको पढ़ने के बाद और आप ये पढ़ने के बाद आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री एंगल जब बनाए और ऑब्जेक्ट हम लोग रखा है तो स्लैंट करके तो रखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट हम लोग परपेंडिकुलर ही रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो मुझे लगता है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप लोग देखेंगे कि आप लोग अगर पहले वाला तरीका लगाएंगे तो बहुत इजीली आप लोग तुरंत आंसर कर देंगे कि हम लोग वैल्यूज़ नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें। तो आगे चलते हैं। The next topic is mirror formula and magnification. So what is the use of mirror formula and magnification? We will know later, and in class 10th you will use it to solve numericals in short, if I would have to put it out like that. So what is the use of mirror formula and magnification? They are used in numerous ways, but you will use it to solve the numericals. If I had to put it like that, you will have to use this formula to solve numericals. Okay, so let's see what is mirror formula. In a spherical mirror, the distance of the object is from pole. In a spherical mirror, the distance of the object from its pole is called the object distance. ये इसका पोल है, यहाँ पे इसका पोल है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको डिनोट किससे करते हैं, यू से। ओके, इस पूरी डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं और उसको यू से डिनोट करते हैं। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं। पोल से लेके और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जो भी हम लोग डिस्टेंसेस लेते हैं वो हम लोग पोल से काउंट करते हैं। तो पोल से लेके और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं यू से। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। और अगर हम लोग ये यहाँ पे इमेज बनी हुई है, यहाँ पे ये इमेज है एज वी कैन सी हियर, तो इस डिस्टेंस को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। ओके, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, वी से। तो ये भी चीज़ आप लोग को क्लियर होगी। यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ वी ऑलरेडी नो, वी हैव कवर्ड दीज थिंग्स in the first starting videos only. There is a relationship between these three quantities given by the mirror formula, which is expressed as 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. तो जो u तो जो u होता है तो जो u v और f होता है, इन तीनों के बीच में की रिलेशनशिप को हम लोग इस मिरर फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो वी एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन u, v एंड f थ्रू मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज दैट रिलेशनशिप, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। यही हम लोग को आगे जाके न्यूमेरिकल्स में फाइंड करना रहेगा कि अगर कहीं पे f और u दिया रहेगा, v नहीं दिया रहेगा, और कहीं पे v u दिया रहेगा, f नहीं दिया रहेगा, और हम लोग ने साइन कन्वेंशन भी पढ़ा है, तो हम लोग उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ रखेंगे। तो आगे जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। बट यहाँ पे आई थिंक दैट मिरर फॉर्मूला मस्ट बी क्लियर टू यू दैट व्हाट इज अ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन v, u एंड f, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आप लोग को क्लियर होगी कि u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, मीन्स पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। और फोकल लेंथ आप लोग को पता है, फोकस से लेके पोल की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। सो इफ मिरर फॉर्मूला इज क्लियर, वी विल मूव ऑन टू मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? What is magnification? Magnification produced by spherical mirrors gives the relative extent to which the image of the object is magnified. So what is magnification? We will try to understand in the simplest manner. अगर ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ओके सॉरी, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये इमेज की हाइट है, तो मैग्निफिकेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इमेज से बड़ा है या छोटा है, अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है, और अगर छोटा है तो कितना छोटा है। ओके, तो अगर आप लोग को समझ में आया हो तो हम लोग पढ़ते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट। रिलेटिव एक्सटेंट मीन्स जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी है, टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब कितनी मैग्नीफाई हुई है ये इमेज इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, मीन्स ये बड़ी है या फिर छोटी है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ये हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो जो हाइट ऑफ द इमेज होती है, मतलब इमेज की कुछ हाइट होगी और ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होगी, अगर हम लोग उन दोनों के बीच का रेशियो निकाल लें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जो इमेज है वो बड़ी है या घटी है, अगर बड़ी है तो कितनी बड़ी है, अगर घटी है तो कितनी घटी है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। वॉट इज h डैश हियर? h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम लोग एक तरीके से मैग्निफिकेशन को और एक्सप्रेस करते हैं, विच इज एज मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। These are some formula given to use while solving numericals. I am telling this again and again so that you don't get confused that what is the application, where will I use it. अगर हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग
इन सब फार्मूला को इस फार्मूला को या फिर जो हम लोगों ने मिरर फार्मूला पढ़ा उसको यूज़ करेंगे।